first year NMD CAT and ETA Chemistry. So let's begin. So अगर हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करें कि what is a solution. So solution is a homogeneous mixture. अब ये किस चीज़ का homogeneous mixture है? It is a homogeneous mixture of two or more molecular और ionic substances. यानी आप जब कभी दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूलर और आयनिक सब्सटेंसेस को मिक्स करें और वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर दें तो ऐसे मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहेंगे. Now looking at the components of solution, we have two components of solution. First is solute and the second component is solvent. So now what is solute and what is solvent? So solution का वो component जो हमें less amount में देखने को मिले, it is called solute. और solution का वो component जो हमारे पास ज़्यादा amount में present होगा उसको कहेंगे solvent. Which means कि एक solution के अंदर solvent is the major proportion of the solution और ये अपने अंदर solute के particles को dissolve करेगा. Now we have three basic type of mixtures. First are solutions, then we have colloids and then we have suspension. So now let's see the difference in between these three. So now अगर particle का size less than 1 nanometer होगा तो it will be a solution. अगर particle का size 1 से लेके 1000 nanometer तक range करेगा तो it will be a colloid. And if the particle size is greater than 1000 nanometers, then it will be a suspension. Now solution की बात करें तो whenever solution is formed, the particles cannot be seen. Now the particles cannot be seen either through microscope or through eye. यानी इसके अंदर जो particles हैं वो हमें ना तो माइक्रोस्कोप से नज़र आएंगे ना तो नेकेड आई से नज़र आएंगे. नाउ अगर कोलॉइड्स की बात करें तो कोलॉइड्स के पार्टिकल्स हमें माइक्रोस्कोप से नज़र आ जाते हैं जबकि नेकेड आई से कोलॉइड के पार्टिकल्स हमें नज़र नहीं आते. एंड अगर सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन के अंदर हमें सोल्यूट पार्टिकल्स नज़र आएंगे बोथ विद द नेकेड आई एज वेल एज विद द माइक्रोस्कोप. नाउ अगर फिल्ट्रेशन की बात करें तो सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स को हम फिल्टर नहीं कर सकते बाय एनी फिल्टर पेपर. कोलॉइड्स की अगर बात करें तो कोलॉइड्स को हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर से फिल्टर कर सकते हैं और सस्पेंशन के अंदर हम नॉर्मल फिल्ट्रेशन से भी सस्पेंशन के पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकते हैं. सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस. Now moving towards concentration of solution and its units. So we know that we have two basic things in a solution. First is solute and second is solvent. Now concentration means कि हमारे पास solvent के relative कितना amount of solute solution में मौजूद है. So हमारे पास अगर हम solute और solvent की relative amounts को compare करें so we conclude the term concentration. It is basically the ratio of solute inside the solution. So concentration के लिए we use different units. So now let's look at the different units. So the first unit of concentration is percentage composition or percentage units. इसमें हमारे पास 4 different categories हैं. So let's look at the first one. First one is weight by weight percent. So weight by weight percent means weight of solute per 100 parts by weight of solution. Now what does that mean? It means कि अगर हम अपनी solution को उठाएं और उसका weight करें और उस weight को हम 100 parts में divide कर दें. Like for example अगर मेरे पास solution है 300 grams की तो इस सॉल्यूशन को अगर हम 100 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हर पार्ट का मेरे पास वेट आएगा 3 ग्राम्स. नाउ अब अगर हम सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स करें बाय वेट तो उसमें हमारे पास सॉल्यूट का टोटल वेट कितना आएगा उसको हम कहते हैं
वेट ऑफ सल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय वेट ऑफ सोल्यूशन या वेट बाय वेट परसेंट। यानी हम सोल्यूशन के 100 पार्ट्स करेंगे बाय वेट, यानी सोल्यूशन का पहले वेट करेंगे, उस वेट के हम 100 पार्ट्स करेंगे। अब हम देखेंगे कि उन 100 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स हमारे पास सल्यूट के आते हैं, दैट इज़ वेट बाय वेट परसेंट सल्यूट। Now this unit of concentration is usually used when we have a solid-solid, a solid-liquid, a liquid-liquid or gas-gas solutions, although it's not necessary to know that. Now सबसे पहले हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। We have 10% NaCl weight by weight percent in water. नाउ इट मीन्स कि अगर हम सोल्यूशन के 100 ग्राम्स ले लें, वैसे डेफिनेशन में हम 100 पार्ट्स का जिक्र करते हैं, लेकिन लिखते हुए हम यूजली 100 ग्राम्स लेते हैं। सो वी हैव 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। सो इट मीन्स कि इसके अंदर जो हमारे पास सोल्यूट यानी NaCl है वो होगा 10 ग्राम्स। So 10% weight by weight NaCl means we have 10 grams of NaCl in 100 grams of solution, not the solvent. Now इस यूनिट से हम सॉल्वेंट की अमाउंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज़ सोल्यूशन इज़ टोटल 100 ग्राम्स एंड फ्रॉम दैट 10 ग्राम्स इज़ सोल्यूट। सो सॉल्वेंट हमारे पास 90 ग्राम्स होगा। सो यूँ हम इस यूनिट से सॉल्वेंट का वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और यूजुअली हम सॉल्वेंट के मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। The next unit is weight by volume percent. Now weight by volume percent means weight of solute per 100 parts by volume of solution. इसका मतलब है कि हम सॉल्यूशन का जितना भी वॉल्यूम है उसको अगर 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उस वॉल्यूम के 100 पार्ट्स में सल्यूट के वेट के कितने पार्ट्स होंगे उसको हम कहते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। नाउ यूजुअली दिस यूनिट इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई से आई हैव 15% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, इट मीन्स कि हमारे पास जो टोटल सॉल्यूशन है उसका हमें वॉल्यूम पता है एंड इट्स वॉल्यूम इज़ 100 मिलीलीटर और 100 डेसीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। सो हमने सॉल्यूशन के ले लिए 100 मिलीलीटर या 100 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ उसके अंदर जो सोल्यूट है यानी हमारा NaCl है ये है 15%, यानी इसका जो मैस है वो 15 ग्राम होगा। सो इस यूनिट में सॉल्यूशन का हम वॉल्यूम लेंगे और सोल्यूट का हम ले लेंगे मैस। सो नाउ वी कैन सी कि इस यूनिट में हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है और सोल्यूट का मैस पता है। देयरफॉर अनलेस एंड अनटिल वी डू नॉट नो डेंसिटी ऑफ वन ऑफ दीज सब्सटेंसेस, तो डेंसिटी के बगैर हम सॉल्वेंट की अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। एंड इम्पॉर्टेंटली हमें चूँकि सोल्यूट का वेट पता है तो हम इससे सोल्यूट के मोल्स निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास सोल्यूशन का वॉल्यूम भी नॉन है तो हम मोल्स बाय वॉल्यूम यानी मोलैरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। The third unit is volume by volume percent. So volume by volume percent is volume of solute per 100 parts by volume of solution. इसका मतलब है कि अगर हम सॉल्यूशन पूरी लें और उसके जो वॉल्यूम है उसको हम 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसके अंदर कितने पार्ट्स सॉल्यूट का वॉल्यूम होगा उसको हम कहते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। नाउ इस यूनिट को हम यूजुअली यूज़ करते हैं फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस या गैस सॉल्यूशंस। सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई से आई हैव 10% NaOH वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास सॉल्यूशन का टोटल जो वॉल्यूम है वो है 100 ml जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों शामिल हैं, तो इसके अंदर जो सॉल्यूट है यानी NaOH उसका वॉल्यूम होगा 10 ml। सो इट इज़ 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन। नाउ यहाँ पर इम्पॉर्टेंटली अगर हम सॉल्वेंट के वॉल्यूम को निकालना चाहें सो वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट
पूरी सोल्यूशन का वॉल्यूम है 100 और उसमें सोल्यूट का वॉल्यूम है 10, सो सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा 90 ml। सो इसमें हम सोल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट तीनों का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। The last unit in percentage is volume by weight percent. So volume by weight percent का मतलब है कि अगर हम solution को लें और solution के weight को 100 parts में divide कर दें, तो उस 100 parts by weight के अंदर solute का total volume कितना होगा उसको हम कहेंगे volume by weight percent, and it is a very less frequently used unit. So for example, if I have 12% ethanol वॉल्यूम बाय वेट, इट मीन्स कि अगर मैं पूरी सोल्यूशन की बात करूं और पूरी सोल्यूशन का जो वेट है वो मैं ले लूं 100 ग्राम्स, सो उसमें अगर मैं सोल्यूट यानी इथेनॉल की बात करूं तो इथेनॉल की इस 100 ग्राम्स में जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी 10 सेंटीमीटर क्यूब। सो इसमें हमें सोल्यूशन का वेट पता है और सोल्यूट का वॉल्यूम पता है। सो अनलेस एंड अनटिल वी डू नॉट नो डेंसिटी ऑफ वन ऑफ दीज, तो हम सॉल्वेंट की अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। द सेकेंड यूनिट दैट वी हैव इज मोल फ्रैक्शन। नाउ व्हाट डज मोल फ्रैक्शन मीन्स? मोल फ्रैक्शन मीन्स मोल्स ऑफ आइदर सॉल्वेंट और सोल्यूट divided by total moles. Now mole fraction हम solvent के लिए भी लेते हैं और solute के लिए भी लेंगे। So अगर हम solvent की mole fraction की बात करें, so solvent की mole fraction होगी moles of solvent divided by total moles. Total moles का मतलब है यानी moles of solvent plus solute both. एंड अगर हम सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन लें तो इट विल बी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सो ये हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर सॉल्वेंट एंड फॉर सोल्यूट। नाउ फॉर एग्जांपल मैंने इथेनॉल लिया एंड इथेनॉल के मैंने ले लिए 10 मोल्स। देन आई टुक वाटर अलॉन्ग विद इट एंड वाटर के मैंने ले लिए 40 मोल्स। सो हियर वाटर इज़ द सॉल्वेंट because it is more in amount and ethanol is solute because it is less in amount. Now अगर हम सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन निकालें यानी इथेनॉल की मोल फ्रैक्शन, तो इट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी 10 मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स यानी 10 मोल्स ऑफ इथेनॉल plus 40 moles of water. So it is 10 by 50. So simplifying it, I get 1 by 5. So mole fraction of solute is 1 by 5. और अगर हम सॉल्वेंट की निकालें तो सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन हमारे पास आएगी 40 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 10 moles of solute plus 40 moles of solvent, that is the total moles. So it is 40 by 50 यानी 4 by 5. So now मोल फ्रैक्शन हमें ये बताती है कि अगर हम पूरी सोल्यूशन के मोल्स ले लें तो उसमें कितने फ्रैक्शन ऑफ मोल्स जो है वो सोल्यूट की है और कितनी फ्रैक्शन ऑफ मोल्स सॉल्वेंट की है। अगर हम सोल्यूट और सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दें यानी 1 by 5 plus 4 by 5, तो वी गेट 5 by 5 और 1. सो the sum of mole fraction of solute and solvent will always be equal to unity. और अगर हमें एक सब्सटेंस की मोल फ्रैक्शन दी है तो दूसरे की मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम पहले की मोल फ्रैक्शन को 1 से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन दी है कि सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन है 1/3, सो व्हाट इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट? सो सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन होगी 1 माइनस 1/3 विच इज़ इक्वल टू 2/3. सो यूँ हम इसके अंदर किसी एक कंपोनेंट की नॉन मोल फ्रैक्शन के साथ दूसरे कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ दिस मोल फ्रैक्शन इज़ वेरी क्लोजली लिंक्ड टू द यूनिट वेट बाय वेट परसेंट. फॉर एग्जाम्पल, if I am asked that I have
10 grams NaOH weight by weight percent. So what is the mole fraction of NaOH? So हम ये कैसे करेंगे? So 10% weight by weight NaOH का मतलब है कि हमारे पास 10 grams NaOH है, 100 grams solution है और 90 grams solvent यानी water है. So solute और solvent दोनों की amount हमारे पास आ गई. अब हम इन दोनों के मोल्स निकालेंगे. सो NaOH का मोलर मास है 40 ग्राम्स. सो 10 डिवाइडेड बाय 40 इज 0.25. नाउ हम वाटर के मोल्स निकालेंगे. सो वाटर का मास है 90 और इसका मोलर मास है 18 ग्राम्स. सो इट इक्वल्स 5. सो हमारे पास दोनों के मोल्स आ गए. तो अब अगर हमने सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, सो इट इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज़ 0.25 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स दैट इज़ 0.25 प्लस 5. सो यूँ हम वेट बाय वेट परसेंट को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ द थर्ड यूनिट इज़ पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन एंड पार्ट्स पर ट्रिलियन. नाउ व्हाट डज दैट मीन? पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कि अगर हम सोल्यूशन के वॉल्यूम या वेट जो भी हम कन्वीनियंट हैं कोई भी ले सकते हैं, तो हम सोल्यूशन के वॉल्यूम या वेट को 100 मिलियन पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसमें से सोल्यूट के कितने पार्ट्स होंगे, सो उसको हम कहेंगे पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर बिलियन की बात करें तो अगर हम सोल्यूशन के वॉल्यूम या वेट जो भी हम कन्वीनियंट हैं उसको बिलियन पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसमें हमारे पास सोल्यूट के कितने पार्ट्स होंगे. एंड इसी तरह पार्ट्स पर ट्रिलियन इज़ कि अगर हम सोल्यूशन के वॉल्यूम या वेट को ट्रिलियन पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसमें हमारे पास सोल्यूट के कितने पार्ट्स होंगे. नाउ चूँकि हमने सोल्यूशन को बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसमें हम सोल्यूट को देखना चाह रहे हैं, सो कीप इट इन माइंड कि हमारे पास ये जो यूनिट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशंस के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि मिलियन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जब हम, और अगर सोल्यूट थोड़ा सा है तो उसके कुछ पार्ट्स हमें मिल जाएंगे. दैट्स वाई दीज यूनिट्स आर यूज्ड फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन. सो अगर हम पार्ट्स पर मिलियन को देखें, सो पार्ट्स पर मिलियन हमारे पास क्या है, वेट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द सेम थिंग वेट और द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन multiply by 10 raised to the power 6 which represents a million. So this is the formula for parts per million. अगर हम parts per billion की बात करें तो we have same formula, we multiply it with 10 raised to the power 9. और अगर हम parts per trillion की बात करें so we have also the same formula but we multiply it with 10 raised to the power 12. So for example, I have a question that I have 5.85 grams of NaCl. मेरे पास NaCl के 5.85 ग्राम हैं in 1 kg of sea water. So what is its concentration in parts per million? Now sea water is my solution here and NaCl is my solute here. दोनों का हमें वेट गिवन है. सो वेट ऑफ सोल्यूट इज़ 5.85 grams. नाउ वेट ऑफ सोल्यूशन इज़ 1 kg विच मीन्स 1000 grams. हमने दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है, दोनों को ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे. एंड वी मल्टीप्लाई इट विथ 10 raised to the power 6 फॉर पार्ट्स पर मिलियन. सो नाउ we cancel these 3 zeros with 3 zeros here, so we get 10 raised to the power 3 here. So 5.85 into 10 raised to the power 3 is 585. So we have 585 parts per million, which means कि अगर हम solution के mass को 1 million parts में divide करें तो उसमें से 585 parts NaCl यानी हमारे solute के होंगे.
Next is the most important unit of concentration, that is molarity, which is denoted by a greater or a larger m. So basically what is molarity? Molarity is moles of solute in 1 decimeter cube or 1 liter of solution. तो सोल्यूशन के 1 डेसीमीटर क्यूब में सोल्यूट के कितने मोल्स होंगे, दैट इज़ कॉल्ड मोलैरिटी. नाउ कीप इन माइंड कि इधर हम सोल्यूट का मैस का यूनिट ले रहे हैं मोल्स, और सोल्यूशन का हम वॉल्यूम का यूनिट ले रहे हैं. सो इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू मैस बाय वॉल्यूम परसेंट. सो मोलैरिटी इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट in 1 decimeter cube of solution. So most often हमें entry test में question molarity से पूछा जाता है. So for example, I have a question that I have 20 grams of NaOH and I dissolve it in 500 centimeter cube of water. सो इसकी मोलैरिटी निकालने के लिए आई रिक्वायर 2 थिंग्स. फर्स्ट इज़ मोल्स ऑफ सोल्यूट. अब इधर सोल्यूट के मुझे मैस गिवन है, सो इसको मैं मोल्स में कन्वर्ट करूँगा. गिवन मैस इज़ 20 ग्राम्स, मोलर मैस ऑफ NaOH इज़ 40 ग्राम्स. सो आई गेट 0.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी NaOH. नाउ सेकंड चीज़ जो मुझे रिक्वायर्ड है वो है सोल्यूशन का वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब. इधर हमें 500 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, सो 1 डेसीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. सो इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1000 से डिवाइड करूँगा. सो आई गेट 0.5 डेसीमीटर क्यूब. Now I have both of these things according to my requirement. So moles of solute are 0.5 and volume of solution is 0.5 decimeter cube. So molarity will be 0.5 by 0.5, 1 molar. Now another frequent question that is asked is कि हमें solution की molarity दे के हमसे volume या दूसरी molarity पूछेंगे. So for example, I have a question that I have 0.5 molar H2SO4 solution. Now if I am asked that I have 250 centimeter cube of this solution, so how many moles of H2SO4 will be present in it, or how much mass of H2SO4 is present in it? So let's break it down. 0.5 मोलर H2SO4 का मतलब है कि हमारे पास H2SO4 के 0.5 मोल्स हैं इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. नाउ हमसे पूछा है कि 250 सेंटीमीटर क्यूब में H2SO4 के कितने मोल्स या कितना मैस होगा. सो वी राइट हेयर 250 सेंटीमीटर क्यूब विच इज़ इक्वल टू 0.25 डेसीमीटर क्यूब. सो इसमें हमारे पास अननोन moles of solute होंगे. So we cross multiply. So x will be equal to 0.5 into 0.25 divided by 1. So it equals 0.125. So 0.5 मोलर H2SO4 सोल्यूशन की अगर हम 250 सेंटीमीटर क्यूब ले लें तो उसमें H2SO4 के हमें 0.125 मोल्स मिलेंगे. और अगर हमने इसको मैस में कन्वर्ट करना हो तो मोल्स को हम H2SO4 के मोलर मैस यानी 98 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द मैस ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 250 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि हमें एक सोल्यूशन की मोलैरिटी देंगे और उसका वॉल्यूम भी देंगे एंड देन हमें वॉल्यूम चेंज करके कहेंगे व्हाट इज़ द न्यू मोलैरिटी. सो लेट्स सॉल्व दैट क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल आई हैव 0.5 मोलर H2SO4 सोल्यूशन. अब इस स्ट्रेंथ की सोल्यूशन का मैंने वॉल्यूम कितना लिया है. सपोज आई हैव टेकन 500 centimeter cube of this solution. Now they tell me that I have added 250 centimeter cube more water.
सो इसमें मैंने सॉल्वेंट का 250 सेंटीमीटर क्यूब और ऐड किया। सो नाउ व्हाट इज़ द न्यू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम 1 यानी इनिशियल वॉल्यूम 500 था। अब हमने इसमें 250 सेंटीमीटर क्यूब ऐड किया तो न्यू वॉल्यूम इज़ 500 प्लस 250 750 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ अब हमने इस वॉल्यूम की सोल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है, क्योंकि हमने इसमें सल्यूट ऐड नहीं किया, सिर्फ सॉल्वेंट ऐड किया है, जिसकी वजह से सोल्यूशन की मोलैरिटी चेंज होगी। सो वी यूज़ द फॉर्मूला M1V1 इज़ इक्वल टू M2V2। सो फर्स्ट हमारे पास मोलैरिटी थी 0.5। इस मोलैरिटी की सोल्यूशन हमारे पास थी 500 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ हमने इसमें सॉल्वेंट ऐड किया तो न्यू वॉल्यूम इज़ 750 सेंटीमीटर क्यूब। सो न्यू मोलैरिटी इज़ अननोन। सो इसको निकालने के लिए वी मल्टीप्लाई 0.5 विथ 500 एंड डिवाइड इट बाय 750। सो वी विल गेट द न्यू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। Now another very common conversion is weight by volume percent into molarity. So for example, I have 30 grams weight by volume percent NaOH solution. Now what is its molarity? So सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास है 30 grams NaOH का। अब हम इधर पूरी सॉल्यूशन का वॉल्यूम देखेंगे, सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं देखेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज़ 100 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ मोलैरिटी के लिए हमें सोल्यूट के मोल्स चाहिए। सो सोल्यूट के हम मोल्स निकालेंगे। 30 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट 40 ग्राम्स, सो इट इज़ इक्वल टू 0.75 मोल्स। नाउ सॉल्वेंट के हम डेसीमीटर क्यूब निकालेंगे। सो 100 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.1 डेसीमीटर क्यूब। नाउ मोलैरिटी के लिए हम क्या करेंगे, सोल्यूट के मोल्स ले लेंगे 0.75 और सॉल्वेंट के हम या सोल्यूशन पूरी के हम डेसीमीटर क्यूब ले लेंगे, तो इट इज़ इक्वल टू 0.1 डेसीमीटर क्यूब। सो वी गेट 7.5 मोलर NaOH solution. Now the last unit of concentration is molality. Now molality is basically moles of solute in 1 kg of solvent, not the solution. Keep in mind that this is solvent only. So this is molality, which is denoted by a small m. So molality में हम solute के moles लेंगे और solvent के kg लेंगे. So for example, I have 80 grams of NaOH and I dissolve it in 500 grams of H2O. Now if I calculate molality, so इसको मुझे convert करना पड़ेगा moles में. So 80 divided by 40 grams is equal to 2 moles of NaOH और सॉल्वेंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन kg. सो 500 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 0.5 kg ऑफ H2O. सो मोलैलिटी निकालने के लिए आई टेक मोल्स ऑफ सल्यूट विच आर 2 एंड kg ऑफ सॉल्वेंट विच इज़ 0.5. सो नाउ दिस बिकम्स 4 मोलल NaOH सोल्यूशन. नाउ सिंस के हमारे पास मोलैलिटी में ऊपर भी मोल्स यानी वेट इन्वॉल्व है और नीचे भी वेट इन्वॉल्व है, सो इट हैज़ अ क्लोज रिलेशनशिप विद वेट बाय वेट परसेंट. सो वी कैन गेट अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ वेट बाय वेट परसेंट इनटू मोलैलिटी. सो नाउ इफ आई हैव 10% वेट बाय वेट NaOH and I need to convert it into molality. So सबसे पहले 10% weight by weight NaOH का मतलब है we have 10 grams of NaOH. Now इसमें total solution होगी 100 grams, जिसमें से 10 NaOH होगा और 90 grams होगा हमारे पास solvent यानी water. So यूँ हमारे पास solute और solvent दोनों का mass आ गया.
अब हमने सोल्यूट के मोल्स निकालने हैं। सो 10 ग्राम्स NaOH इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 40 विच इज़ 0.25 मोल्स ऑफ NaOH। अब वाटर को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू केजी। सो 90 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 0.09 kg। सो मोलैलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी 0.25 इसको डिवाइड करेंगे विद kg ऑफ सॉल्वेंट विच इज़ 0.09। सो वी विल गेट द मोलैलिटी। नाउ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। सो अगर हम ये कंपेयर करें कि इनमें से कौन सी ज़्यादा डाइल्यूट है, 1 मोलल या 1 मोलर। सो 1 मोलल का मतलब है कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट होगा 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। 1 मोलर का मतलब है 1 मोल ऑफ सोल्यूट होगा 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में। सो मोलल में हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है। मोलर में हमारे पास डिनोमिनेटर में सोल्यूशन है विच मीन्स दैट सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट बोथ। सो यहाँ पर हमारे पास सॉल्वेंट और सोल्यूट मिल के 1 डेसीमीटर क्यूब बना रहे हैं और ऊपर हमारे पास सिर्फ सॉल्वेंट जो है वो 1 kg है, विच मीन्स कि मोलैलिटी में सॉल्वेंट इज़ ग्रेटर इन अमाउंट, जबकि मोलैरिटी में सॉल्वेंट इज़ लेसर इन अमाउंट। तो जब सॉल्वेंट हमारे पास अमाउंट में ज़्यादा होगा तो सोल्यूट ऑटोमेटिकली रिलेटिवली लेस होगा। देयरफॉर मोलर solution will be more dilute because of more solvent, and molar solution will be less dilute or it will be more concentrated than the molar solution. Now another very common question that we get in entry test is independence of temperature, यानी कौन से यूनिट्स टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं और कौन से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं। सो लेट्स डिस्कस इट फर्स्ट कि हमारे पास mass is not affected by change in temperature whereas volume is affected by change in temperature। तो जिन हमारे पास यूनिट्स में सिर्फ mass involved होगा those units will not be affected by change in temperature, जबकि जिन में हमारे पास वॉल्यूम प्रेजेंट होगा they will be affected by change in temperature। सो जिन में सिर्फ mass प्रेजेंट है that is weight by weight percent, इसमें हमारे पास mass प्रेजेंट है। देन वी हैव मोलैलिटी। मोलैलिटी में भी सिर्फ और सिर्फ mass प्रेजेंट है यानी मोल्स और mass प्रेजेंट है। सो ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। एंड द लास्ट यूनिट दैट वी हैव इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में भी हमारे पास दोनों तरफ मोल्स यानी mass के यूनिट्स प्रेजेंट हैं। सो ये तीनों यूनिट्स हमारे पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट होंगे। So that's all for this lecture. Thank you.